Good morning, 6th class. Welcome to SST class. Hope you all are fine. And we were doing chapter 10 of history, the Harappan civilization. And this is a picture of jewelry found at Mohenjo-daro. People were fond of both indoor and outdoor games. Dancing, playing of dice and chess, hunting, racing, etc. were favorite pastimes. They also made toys like animal figures, cards and other things of terracotta. तो उस टाइम के लोगों को इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों में दिलचस्पी थी और वो डाइस एंड चेस खेलते थे, हंटिंग, रेसिंग और डांसिंग करते थे। और उसके अलावा वहाँ उन्होंने टॉयज़ भी बनाए थे, जैसे एनिमल फिगर्स थी, कार्ड्स और बहुत सारी अदर थिंग्स टेराकोटा से बनी हुई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ। एग्रीकल्चर एंड कैटल rearing appear to be the main professions of people. Various grains, vegetables and cotton were grown. The remains of plowed fields from Kalibangan indicate that the method of agriculture was much like that of modern times. Sheep, goat, bull, buffalo, camel, elephant, horse and dog were domesticated. एग्रीकल्चर और कैटल rearing उस टाइम का उनका मेन प्रोफेशन था, मेन काम था। और वो अलग अलग तरह की ग्रेन्स उगाते थे, वेजिटेबल्स और कॉटन उगाते थे। और कालीबंगन में कुछ रिमेन्स मिले हैं, उससे इंडिकेट होता है कि उनकी जो वो खेती करने का तरीका था, मेथड था, वो मॉडर्न टाइम से काफ़ी मिलता जुलता था। और वो शीप, गोट, बुल, बफेलो, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स और डॉग को वो डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे। सेवरल आर्टिकल्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट लाइक पॉटरी, हाउस होल्ड goods of copper and other materials such as spindle, wools, needles, fish hooks, weights, jewelry of gold, silver and stone, terracotta articles, weapons like axes, daggers, spears and many other things were manufactured. और काफ़ी तरह की वो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें, ये सब जैसे और ज्वेलरी और स्टोन्स और टेराकोटा और वेपन्स काफ़ी सारे उन्होंने बनाए हुए थे। Trade was carried on within the country and also with foreign lands like Mesopotamia. Some seals made of steatite and terracotta have been discovered that have the picture of boats and ships on them. और ट्रेड जो था वो अपनी कंट्री में और कंपनी के बाहर मेसोपोटामिया में भी करते थे। वो काफ़ी सारी सील्स मिली हैं जो स्टेटाइट और टेराकोटा से बनी हुई हैं, जिन पे बोट्स और शिप्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट है रिलीजन। द फीमेल टेराकोटा figurines discovered from various sites of Hindu civilization indicate that the people worshipped mother goddess. जो टेराकोटा फिगर्स मिली हैं फीमेल्स की, उनसे पता चलता है कि वो लोग मदर गॉडेस को की वर्शिप करते थे, उनको पूजते थे। सम सील्स bearing the picture of a yogi like man in meditation and surrounded by various animals have been found. He is named Pashupati, that is another name of god Shiva. He was also worshipped in the form of Shivalinga. The picture of bull found on some seals indicates that it too was worshipped. Tree worship was also popular and the peepal tree was considered sacred. बहुत सारी जो सील्स मिली हैं उन पे पिक्चर्स एक योगी टाइप के मैन की हैं जो मेडिटेशन करता हुआ है, और उसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। और ये पशुपति की है, जिसका दूसरा नाम गॉड शिवा भी है। और शिवलिंग की फॉर्म में भी उनको वर्शिप किया जाता है। और एक पिक्चर बुल की भी है, जिससे पता चलता है कि वो उसको भी वर्शिप करते थे। और ट्री भी उस टाइम पे वो वर्शिप करते थे, पीपल ट्री को। आर्ट एंड नॉलेज ऑफ राइटिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट वर हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. टॉयज मेड ऑफ टेराकोटा एंड स्टैचूज ऑफ स्टोन एंड मेटल हैव बीन फाउंड. A bronze statue of a dancing girl discovered from Mohenjo-daro is very beautiful. A stone head of a priest or some chief with beard and a headband and a male torso that had movable limbs are
other good examples: carts that could be pulled with a sting, monkey that could climb or crawl down on a stick, and other such toys were made in large numbers. A very special feature of this sculpture was seals made of a soft stone called statite. They depict various animals like humped bull, elephant, unicorn, bison, etc. on them. Some seals have the picture of Pasupati Shiva and others show a peepal tree on them. Some inscriptions are engraved on the top of these seals in pictographic script. This script has not been read so far, but it indicates that the Harappan people had knowledge of writing. अलग अलग तरह की आर्ट उस टाइम पे डेवलप हुई. जो टॉयज़ उनके टेराकोटा और स्टैचूज़ मिले हैं स्टोन्स के, और मेटल के भी काफ़ी स्टैचूज़ मिले हैं. और एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है जो डांसिंग गर्ल का मोहनजोदारो में मिला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और एक स्टोन हेड एक प्रीस्ट का जिसमें वो एक मेल का है जिस बियर्ड वाला है, जिसके लिम्स जो हैं वो मूवेबल हैं. और बहुत सारी अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्ड्स है वो एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, और मॉन्कीज हैं, और बहुत सारे टॉयज लार्ज नंबर में वहाँ पे मिले. और ये है ब्रॉन्ज का स्टैचू जो एक डांसिंग गर्ल का मिला है, और ये स्टोन हेड है प्रीस्ट का. और काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स जो मिले हैं इस कल्चर के, वो हैं सील्स जो कि स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन की बने हुई हैं, और जो डिपिक्ट करते हैं कि जैसे हम्प्ड बुल है, एलिफेंट, यूनिकॉर्न, बीसन है, वो उन पे बनाए गए थे एनिमल्स. और काफ़ी सारी सील्स पे पशुपति शिवा की पिक्चर्स थी, और बाकियों पे पीपल ट्री की थी. और काफ़ी इंस्क्रिप्शंस भी वहाँ पे मिले हैं, और जो कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में है, और वो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, लेकिन वो इंडिकेट करती हैं कि हड़प्पन पीपल को राइटिंग की भी नॉलेज थी. डिक्लाइन ऑफ द इंडू सिविलाइजेशन. At one time, scholars believed that the Indus civilization had come to an end due to the invasions of Aryans from foreign lands, but this view has no evidence to support and it is now discarded. It is possible that continuous floods in the Indus and its tributaries were one of the causes of its decline. It seems that drying up of the river Saraswati about 1900 BC also forced people of this region to migrate castwards to the Gangetic plains. We find out about 1500 BC this civilization came to an end. एक टाइम पे स्कॉलर्स ने मानते थे कि जो इंडो सिविलाइजेशन है वो इसलिए ख़त्म हुई है क्योंकि आर्यंस ने उन पे हमले किए थे फॉरेन लैंड से, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला और इसलिए इस बात को माना नहीं गया. और दूसरी जो पॉसिबल रीज़न है इस इनके डिक्लाइन का वो ये है कि वहाँ पे इंडूज में कंटिन्यूस फ्लड्स आते गए, बाढ़ आती रही, और जिनकी वजह से वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो छोटी नदियाँ थी जो हेल्प करती थी उनको, वो ख़त्म हो गई. और सरस्वती रिवर जो थी वो ड्राई हो गई, सूख गई, और उसकी वजह से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा गंगेटिक प्लेन्स की तरफ. और 1500 BC तक ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया. थैंक यू सो मच.